Hello students, welcome to my channel English All New Academy. This video deals with some useful tips and techniques to enhance writing skill using linking words. मैंने इस वीडियो में linking words के बारे में डिस्कस किया है कि linking words को यूज करके आप 7 बैंड से ज्यादा इवन 8 बैंड्स किस तरह से स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि मैंने लिंकिंग वर्ड्स की पूरी जानकारी दी है, लिंकिंग वर्ड्स के फंक्शन समझाए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और पैराग्राफ भी दिया है जिससे कि आप इजीली समझ सकें कि लिंकिंग वर्ड्स किस तरह से यूज कर सकते हैं और आपका पैराग्राफ कितना इफेक्टिव हो जाता है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट राइटिंग टेस्ट। In writing test, there are 2 tasks. One task is related to letter writing and the other one is essay writing. Now in both the tasks, assessment is done keeping in mind certain criteria. Assessment कैसे किया जाता है? तो ये सारे criteria कुछ हैं जिन पे ध्यान दिया जाता है। Grammar, we know that you should write grammatically correct sentences. Vocabulary, आपको appropriate vocab का यूज करना है। Variety of sentences, which is one of the most important criteria. Variety of sentences हम कैसे form करें? We can form variety of sentences by using linking words. Linking words are also called connectives because they link or connect one idea with the other or one sentence with the other. तो इस तरह से linking words का यूज करके आप अपने sentences बहुत ही effectively frame कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। अब कंटेंट को सही तरह से ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए आपको लिंकिंग वर्ड्स की जरूरत है। विद द यूसेज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स यू कैन इजीली फ्रेम सेंटेंसेस व्हिच आर लिंक्ड विद वन अनदर एंड यू कैन इवन लिंक पैराग्राफ्स विद वन अनदर यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स। ये मैंने पैराग्राफ के एग्जाम्पल से समझाया है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। Let us try to understand how linking words play a significant role in enhancing your writing skill. For organization of the content, linking words are considered to be one of the most important aspects in assessment of writing skill. Linking words make it easy for you to express the ideas. आप linking words use करके idea को बहुत ही आसानी से express कर सकते हैं। Linking words are used to join two words or phrases or ideas or sentences. अगर आप सिर्फ simple sentence लिखेंगे तो आपकी writing skill effective नहीं होगी, इसीलिए आपको variety of sentences use करना है और linking words are very helpful in forming variety of sentences. सारे linking words के एक-एक करके मैंने function समझाए हैं। बहुत सारे linking words हैं जिनके बारे में हम हर एक वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। Linking words like besides, in addition to, moreover, as well as, along with, together with, therefore, thus and such linking words are very helpful in framing a variety of sentences. यहाँ पर मैंने ये सारे linking words लिए हैं इस वीडियो में और बहुत से और भी linking words हैं जो कि मैंने अलग अलग parts में divide कर दिए हैं so that it becomes easy for you to understand the function of each and every linking word. Now let us try to understand about concluding paragraph. Concluding paragraph मतलब last वाला paragraph जो लिखते हो जिसमें आप conclude करते हो, इसमें भी आपको linking words अच्छे से यूज करने हैं। मैंने पैराग्राफ से समझाया है, एक पैराग्राफ मैंने दिया है और बहुत से एग्जाम्पल भी दिए हैं ताकि आप ये समझ सकें कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिंकिंग वर्ड्स जैसे कि therefore, thus ये किस तरह से आपकी राइटिंग को इनहेंस कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लिंकिंग वर्ड्स। पहले सबसे लिया है हमने moreover। moreover का मतलब है साथ साथ, इसके अलावा भी। moreover का मीनिंग है in addition to. So let us take a few examples. Sheena wrote a letter of complaint to the municipal commissioner. Moreover, she went to his office to meet him. शीना ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेंट लेटर लिखा और इसके अलावा
वो उनसे मिलने ऑफिस भी गई, तो इसके अलावा वो उनसे मिलने ऑफिस भी गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोर ओवर का यूज किया है तो सेंटेंस अच्छा लग रहा है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ एंड का यूज करते, जैसे कि शीना रोट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द म्युनिसिपल कमिश्नर एंड वेंट टू मीट हिम इन द ऑफिस, एंड का यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंड आई हैव यूज्ड हियर मोर ओवर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेव्स आवर टाइम as well as energy. Moreover, it has proved to be cost effective. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपना टाइम और एनर्जी तो बचाता ही है, साथ साथ में कोस्ट इफेक्टिव भी है। कोस्ट इफेक्टिव मीन्स इट सेव्स मनी ऑल्सो। अब ये देखिए, मैंने एज वेल एज एक लिंकिंग वर्ड यूज किया है और दूसरा लिंकिंग वर्ड है मोर ओवर। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं एज वेल एज और मोर ओवर की जगह पर एंड यूज करूंगी तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो कोस्ट इफेक्टिव। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि एड करके यूज अगर आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो कितना इफेक्टिव है, और अगर हमने ये लिंकिंग वर्ड्स यूज किए हैं तो हाउ इफेक्टिव इट बिकम्स। चलिए थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। हितेश कम्यूट्स फ्रॉम खेड़ा टू नडियाद टू अटेंड हिज कॉलेज। Moreover, he works as a chef in a restaurant. हितेश खेड़ा से नडियाद अपना कॉलेज अटेंड करने के लिए रोज जाता है। कम्यूट मतलब अप डाउन करना। Moreover, इसके साथ साथ वो रेस्टोरेंट में शेफ भी है। अगर इसको आप सिर्फ एंड करके लिखोगे, जैसे कि हितेश कम्यूट्स फ्रॉम खेड़ा टू नडियाद टू अटेंड हिज कॉलेज एंड ही ऑल्सो वर्क्स एज अ शेफ इन अ रेस्टोरेंट, तो एंड का यूज करके आप देख सकते हैं किस तरह से सेंटेंस फ्रेम होगा, और मोर ओवर करके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग सिंपल कनेक्टिव्स एंड यूजिंग द लिंकिंग वर्ड्स विच आर रियली इफेक्टिव। चलिए लेट अस टेक दिस एग्जांपल। माय सिस्टर इज एन एक्सीलेंट बैट्समैन। मोर ओवर शी इज अ कोच इन अ क्रिकेट अकेडमी। तो यहाँ पर मोर ओवर, मेरी सिस्टर एक्सीलेंट बैट्समैन तो है ही, लेकिन साथ साथ में वो क्रिकेट एकेडमी में कोच भी है। अब इसे अगर हम सिर्फ एंड करके लिखेंगे तो देखिए किस तरह से होगा। माई सिस्टर इज एन एक्सीलेंट बैट्समैन एंड शी इज ऑल्सो अ कोच इन अ क्रिकेट एकेडमी। तो ग्रामेटिकली तो अगर आप एंड यूज करोगे तो ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर हम वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वी नीड टू यूज सच लिंकिंग वर्ड्स। Let us take another linking word, that is besides. Besides का मीनिंग भी होता है in addition to. Besides being wise, she is also kind. समझदार होने के साथ साथ वो दयालु भी है। तो समझदार होने के साथ साथ, तो ये जो साथ साथ मैंने बोला वो besides है। दयालु होने के समझदार होने के साथ साथ वो दयालु भी है। अगर इसे आप सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, शी इज वाइज एंड काइंड, तब भी वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, लेकिन मैंने एंड की जगह पर बिसाइड्स यूज किया, सो इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। बिसाइड्स स्टडिंग, शी इज ऑल्सो वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। पढ़ाई के साथ साथ वो कॉल सेंटर में भी काम करती है। यहाँ पर भी आप एंड यूज करते तो आप देख सकते हैं कि एंड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। बिसाइड्स बीइंग अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट, ही वाज आल्सो गिवन अ लैपटॉप। उसको सर्टिफिकेट मिला, उसके साथ साथ में लैपटॉप भी दिया गया। बिसाइड्स बीइंग स्कोल्डेड, ही वाज पनिश्ड बाय हिज ब्रदर। उसके ब्रदर ने उसे डांटा और डांटने के साथ साथ पनिश भी किया। बिसाइड्स बीइंग अ राइटर, आई एम अ पेंटर। मैं राइटर तो हूं ही, लेकिन साथ साथ में पेंटर भी हूं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किसी चीज की क्वालिटीज बतानी है या कोई दो एक्शंस के बारे में बताना है तो हम इस तरह से बिसाइड्स का यूज भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब भी बिसाइड्स होता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सेम पैराग्राफ में वी हैव टू अवॉइड यूजिंग
द सेम लिंकिंग वर्ड मोर देन 2 टाइम्स। कोई भी एक पैराग्राफ है तो उसमें हमें 2 बार से ज्यादा सेम लिंकिंग वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा आपके पास बिसाइड्स है, मोर ओवर है, इन एडिशन टू है, एंड है, तो ये सारे वर्ड्स आप एक एक बार यूज करेंगे तो योर राइटिंग विल बिकम मोर इफेक्टिव। और अगर हर बार आप एंड का यूज करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखेगा। He took chocolates in addition to cookies. उसने कुकीज के साथ साथ चॉकलेट्स भी ली। श्रवण wrote 2 essays in addition to an article. एक आर्टिकल तो लिखा ही, लेकिन साथ साथ में श्रवण ने 2 essays भी लिखे। I have been assigned the task of organizing the event in addition to arranging the transport. मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज करने का काम तो मिला ही, लेकिन साथ साथ में ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का भी काम मिला। They gave him a bicycle in addition to an electric U-bike. उसको साइकिल तो मिली ही, लेकिन साथ साथ में U-bike भी दिया गया। In addition to a gold medal, she was also rewarded with a motorbike. उसे गोल्ड मेडल तो दिया ही गया, लेकिन साथ साथ में उसे मोटर बाइक भी दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि you can really enhance your writing skill by using linking words. Let us take along with. The director along with the trustees attended the meeting. तो यहाँ along with की जगह पर आप सिर्फ with भी लिख सकते थे, लेकिन with की जगह पर अगर हम along with लिखेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है। with या along with दोनों का मीनिंग सेम है। द डायरेक्टर एंड द ट्रस्टीज, अगर आप एंड भी लगाते तो भी आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस विल बी करेक्ट, लेकिन फिर एंड का बार बार यूज करेंगे तो आपके सेंटेंसेस इफेक्टिव नहीं होंगे। तो एंड की जगह पर हमने along with यूज किया। द डायरेक्टर along with the trustees attended the meeting. She got a visa for Germany along with other 19 countries including Dubai. उसे जर्मनी के लिए वीजा मिला और साथ साथ में दूसरे 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग दुबई का भी वीजा मिला। The supervisor along with the employees complained against the manager of the firm. Firm means small company. Supervisor along with the employees मतलब सुपरवाइजर के साथ साथ एम्प्लॉयज जो थे, काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी मैनेजर के खिलाफ कंप्लेन की। My sisters along with my cousins have visited the Elephanta caves. मेरी सिस्टर्स और मेरी कजिन्स दोनों ने ही एलिफेंटा केव्स को विजिट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां भी along with है वहां पर आप and का भी यूज कर सकते हैं, with का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, तो आपको कुछ वैरायटी ऑफ वर्ड्स लेने हैं, कुछ लिंकिंग वर्ड्स लेने हैं टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। The doors along with the windows are broken. डोर के साथ साथ विंडोज भी टूट गई हैं। Now let's try to understand the function of as well as. As well as का भी मीनिंग and होता है, जैसे कि along with है, as well as है, and है, they are considered to be similar in meaning. उनके जो similar है मीनिंग्स में वो, लेकिन जैसे कि बार बार and ना यूज करके आप एक बार and का यूज कर सकते हैं, दूसरी बार along with का यूज करिए and की जगह पर, और थर्ड टाइम instead of and you can use as well as. The manager as well as the director were invited. यहाँ पर वर नहीं होगा, वॉज होगा। वॉज क्यों होगा? क्योंकि आपको इसके कुछ फंक्शंस और रूल्स भी याद रखने हैं। जब भी हम एज वेल एज या अलॉन्ग विद का यूज करते हैं तो हमें फर्स्ट पर्सन देखना है। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? द मैनेजर। ये सिंगुलर है, एक ही मैनेजर है, इसीलिए हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज करना है। आपको इनके फंक्शन के साथ साथ इनके यूसेज और इनके वर्ब्स के रिलेटेड भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने दूसरे वीडियोस में ये सारे रूल्स भी बताए हैं, जैसे यहाँ पर तो हम इनका यूसेज देख रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन, लेकिन जब आप एज वेल एज, अलॉन्ग विद या टुगेदर विद लिंकिंग वर्ड्स यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें ये
वर्ब्स यूज करने हैं, उसके बारे में इन डिटेल्ड जानकारी आपको मेरे दूसरे वीडियोस में मिलेगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल। आई बॉट फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स। मैं फ्रूट्स भी लाई और वेजिटेबल्स भी लाई, तो यहाँ एंड की जगह पर एज वेल एज यूज कर सकते हो। द पुलिस एज वेल एज द क्राउड वर रनिंग आफ्टर द थीफ। यहाँ पर द पुलिस है तो ये एक से ज्यादा लोग हैं। द पुलिस का मतलब होता है बहुत सारे पुलिसमैन, बहुत सारे पुलिस वाले, साथ साथ में क्राउड भी। तो ये सब चोर के पीछे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ भी एंड की जगह पर एज वेल एज यूज किया है। इन एलिमेंट्री स्कूल वी वर टॉट फ्रेंच एज वेल एज जर्मन। हमें एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी सेक्शन में फ्रेंच के साथ जर्मन भी पढ़ाई जाती थी। आई हैव स्कोर्ड 9 bands इन रीडिंग एज वेल एज लिसनिंग। मुझे रीडिंग और लिसनिंग में 9 bands मिले हैं। शी बॉट एंकलेट्स एज वेल एज ईयर रिंग्स। वो पायल के साथ साथ एंकलेट्स के साथ साथ ईयर रिंग्स भी लेकर आई। तो देखा आपने एंड की जगह पर आप कितने सारे लिंकिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी राइटिंग स्किल बहुत ही इनहेंस हो जाएगी। लेट अस टेक द लिंकिंग वर्ड टुगेदर विद। टुगेदर विद का भी मतलब होता है एंड। आप एंड की जगह पर टुगेदर विद का भी यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने हाउ वी कैन यूज ऑल these linking words instead of and. My sister, together with her friends, visited the great planetarium. यहाँ पर and की जगह together with यूज किया है। Birender, together with his father, is going to Australia tomorrow. बीरेंदर अपने पापा के साथ कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो टुगेदर विद मतलब एंड। शालिनी टुगेदर विद हर सिस्टर्स विल गो टू फ्रांस। शालिनी उसकी सिस्टर्स के साथ फ्रांस जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं शालिनी एंड हर सिस्टर्स विल गो टू फ्रांस, देन ऑल्सो इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली तो एंड का यूसेज करेक्ट होगा, लेकिन फिर बार बार एंड का यूज करेंगे तो आपका जो राइटिंग स्किल है वो पुअर हो जाएगा, बिकॉज इट विल रिवील दैट यू डू नॉट possess enough knowledge about grammar as well as linking words. हितेंद्र saved the mother duck together with its ducklings. हितेंद्र ने डक के साथ साथ उसके डकलिंग्स की भी जान बचाई। वीरेन bought jeans together with shoes. वीरेन जीन्स के साथ साथ शूज भी लेकर आया। So I hope you have understood the linking words easily. Here is the paragraph which will help you to understand how you can enhance your writing skill using linking words. यहाँ पर आप देखेंगे कि therefore का यूज करके और दूसरे जो लिंकिंग वर्ड्स हैं उनका यूज करके हमने इस पैराग्राफ को किस तरह से इफेक्टिवली लिखने की कोशिश की है। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको ऐसा कोई एसे मिल रहा है विच इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और एनी अदर टॉपिक, तो हम किस तरह से उसको स्टार्ट कर सकते हैं एंड इन व्हाट वे वी कैन राइट द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। उसे कंक्लूड कैसे करेंगे। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक आइडिया को दूसरे आइडिया से हमने कैसे लिंक किया है, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी असेसमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए। तो लेट अस बिगिन विद द यूसेज ऑफ देयरफॉर। In the world of modernization, technological advancement has made significant contributions in each and every field. In the educational field as well as in other sectors like banking, agriculture, engineering, medicine, research, technology has proved to be a boon for mankind. Drastic changes which have been noticed in the field of education include online teaching, online examinations, online admissions, use of smart boards. Moreover, in the banking sector, online transactions are used worldwide. Customers don't have to wait in long queues for transactions like withdrawal or deposit. Therefore, it can be said that
technology has proved to be cost effective and time effective as it saves money along with time. तो देखिए, आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि हाउ द लिंकिंग वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, हाउ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आर यूज्ड एंड हाउ वन आइडिया इज लिंक्ड टू द अदर। और यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर जैसे आपने देखा मॉडर्नाइजेशन के बारे में शुरुआत हुई, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात हुई बिकॉज द पैराग्राफ वाज रिलेटेड टू द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फिर आपने देखा कि यहाँ पर हमने यूज किया एज वेल एज इन द एजुकेशनल फील्ड एज वेल एज इन अदर सेक्टर्स। यहाँ पर आप एंड भी यूज कर सकते थे, इन द एजुकेशनल फील्ड एंड अदर सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, एग्रीकल्चर, बट एंड की बजाय हमने एज वेल एज को यूज किया। देन हियर वी कैन सी दैट टेक्नोलॉजी हैज प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर मैनकाइंड। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आप फैक्ट लिख रहे हो, दिस इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि सच में टेक्नोलॉजी हमें बहुत हेल्पफुल है, तो आप ये टेंसेस का भी ध्यान रखेंगे। ड्रेस्टिक चेंजेस विच हैव बीन नोटिस्ड, यहाँ पर विच देखोगे आप तो दिस इज ऑल्सो द लिंकिंग वर्ड, ये भी लिंकिंग वर्ड है। इसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो फ्लो है आइडिया का, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर बहुत ही स्मूथली फ्लो हो रहा है। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बीच में अचानक से आपने कोई और आइडिया को डाल दिया या अचानक से आप डाइवर्ट हो गए। एक आइडिया को दूसरे आइडिया से लिंक करते जाना है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए कि फील्ड ऑफ एजुकेशन में विच आर द थिंग्स दैट आर इन कंसिडरेशन लाइक ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, यूज ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स। अब ये तो हो गया एजुकेशन की जो भी है इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। अब साथ साथ में मुझे दूसरे सेक्टर भी लेने हैं क्योंकि बिगनिंग में मैंने बताया था कि इन ऑल दिस सेक्टर्स ऑल्सो टेक्नोलॉजी हैज रियली प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। तो यहाँ पर मैंने लिंकिंग वर्ड यूज किया कि एजुकेशन के अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। फिर ये दिखा दिया मैंने किस तरह से जरूरी है। अब ये पूरे का समराइज करना है, कंक्लूजन देना है आपको, तो कंक्लूड करना है। देयरफॉर मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कोस्ट इफेक्टिव है और टाइम इफेक्टिव है, क्योंकि वो अपनी, और कोस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि वो अपनी मनी सेव करती है और टाइम भी सेव करती है। तो यहाँ पर मैंने कोस्ट इफेक्टिव और टाइम इफेक्टिव कैसे है ये भी बता दिया यूजिंग द कंजंक्शंस, द लिंकिंग वर्ड्स लाइक एज एंड अलोंग विद। दूसरा आप ये भी देखिए कि यहाँ पर मैंने पूरा ध्यान रखा है कि किसी भी लिंकिंग वर्ड को रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंकिंग वर्ड्स को रिपीट नहीं किया है और बहुत ही इफेक्टिवली ये पैराग्राफ लिखा गया है। आप भी कोशिश करें कि जब भी कोई राइटिंग स्किल लिखते हैं तो याद रखें कि हमें कोशिश करना है कि लिंकिंग वर्ड्स रिपीट ना हो, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास एक वर्ड के लिए 3 से 4 उसके सिमिलर वर्ड्स हैं, तो क्यों ना हम उन सारे लिंकिंग वर्ड्स का इफेक्टिवली यूज करें। आई होप you liked the video. If you liked my video, please like it and also subscribe my channel. बेल आइकन को भी क्लिक कर दें जिससे कि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। Thank you for watching the video.